please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिप्लब देव जिन्होंने अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी 2 साल पहले त्रिपुरा में और गेम चेंजर के तौर पर वो उभरे जो अब त्रिपुरा की गद्दी पर राज करेंगे। बिप्लब देव की अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की, उसके बाद जो है वो दिल्ली गए और अब मुख्यमंत्री। अनुग्रह प्रीति बा विद्वेष मुक्त থাকিয়া सर्वश्रेणीर लोकेर प्रति न्याय आचरण करिब। আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। যতন হামবাই খুলুম পাইকা যত সবাইকে নমস্কার। तो रतनलाल नाथ ने शपथ ली है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले ये कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। इस बार इन्होंने मोहनपुर से चुनाव जीता है और सीपीएम के सुभाष चंद्र देवनाथ को इन्होंने करारी शिकस्त दी। तो पाला बदला था, इन्होंने पहले कांग्रेस में थे लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए और अब इसका इनाम भी इनको मिला है। मंत्री पद की शपथ ली है रतनलाल नाथ ने। इससे पहले नरेंद्र चंद्र देव वर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली, विप्लब देव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और जिष्णु देव उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली इन्होंने। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप अगरतला से देख रहे हैं। अगरतला में शपथ ग्रहण समारोह हो, एक बड़ी जीत पूर्वोत्तर में और एक संदेश देने की भी कोशिश है इस मंच के जरिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और जो ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है इसमें आईपीएफटी की छाप देखी जा सकती है और यही वजह है कि अब जो है जिष्णु देव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नरेंद्र चंद्र देव वर्मा भी यहाँ पर मंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है। I, Sri Sudeep Roy Burman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Minister for the State of Tripura, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Sri Sudeep Roy Burman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Tripura, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो सुदीप रॉय बर्मन ने मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि ये कांग्रेस से टीएमसी और फिर बीजेपी में शामिल हुए। इस बार इन्होंने अगरतला से चुनाव जीता है और बड़ी बात यह है कि ये चौथी बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री समीर रंजन बर्मन के बेटे हैं सुदीप रॉय बर्मन, जिन्होंने अब मंत्री पद की शपथ ली है। ये अगरतला की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। असम राइफल मैदान है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और पोर्टफोलियो के बारे में अभी जानकारी नहीं है लेकिन मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले सुदीप रॉय बर्मन ने मंत्री पद की शपथ ली। আমি শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ভগবানের নামে বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব।
আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষমুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ভগবানের নামে বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা মন্ত্রীর কার্য নির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। तो प्राणजीत सिंह रॉय ने मंत्री पद की शपथ ली है। इन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता। आपको बता दें, पिछले साल कांग्रेस छोड़ ये बीजेपी में शामिल हुए। इन्होंने पाला बदला, बीजेपी का दामन थामा और अब मंत्री पद की शपथ ली। हमारे सहयोगी अमित पांडे लाइव मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अमित, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं और एक तरह से देखा जाए कि आईपीएफटी की छाप भी इस शपथ ग्रहण समारोह में देखी जा रही है। जी बिल्कुल, कितना अहम है बीजेपी के लिए ये शपथ ग्रहण समारोह, हम आपको तस्वीरों के जरिए हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरा का पूरा जो बीजेपी का टॉप ब्रास है, हम कह सकते हैं कि 7 से 8 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सारे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक तरीके से बीजेपी यहाँ पर ये दिखाना चाहती है, इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए ये दिखाना चाहती है एक विचारधारा की जीत है। और पहले यहाँ त्रिपुरा में जो लाल झंडे नजर आते थे, आज यहाँ पर पहली बार केसरिया रंग में पूरा ये असम राइफल्स ग्राउंड है, ये पूरा रंगा हुआ है और इस तरीके का स्टेज शायद त्रिपुरा के इतिहास में पहली बार सजा गया है। और हम अगर मंत्रिमंडल की ओर नज़र डालें तो मंत्रिमंडल में आदिवासी, जातीय, स्थानीय और प्रदेश के लोगों को सबका मिश्रण रखा गया है और मंत्रिमंडल की संख्या 8 से 12 के बीच में हो सकती है। जो सहयोगी दल है उसको 2 सीट मिल सकती है और जो अलग अलग तरीके के संतुलन है वो मंत्रिमंडल में बनाए जाने की संभावना है। तो कुल मिलाकर ऐसा शपथ ग्रहण समारोह अगर हम कहें तो 2016 के बाद उत्तर पूर्व में त्रिपुरा में आज पहली बार दिखा है और ये भी इस बात की ओर इशारा है कि आने वाले दिनों में कितनी अहमियत इस राज्य को, इस इलाके को बीजेपी देगी, चाहे अपनी सरकारी योजना है या फिर चुनावी रणनीति है। बिल्कुल अमित, जैसा कि आप बता रहे हैं, जीत बड़ी है तो जश्न भी बड़ा होना चाहिए और इसी का सबूत है ये तस्वीरें। बिप्लब देव गेम चेंजर साबित हुए हैं और उसी का उन्हें इनाम मिला। जी बिल्कुल, बिप्लब देव जो यहाँ पर यंग चेहरा है और युवा नेता के तौर पर उनको यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है। और अगर हम उनकी ओर यहाँ पर देखें, बिप्लब देव लाल रंग की जैकेट में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो एक तरीके से स्थानीय जो परिधान है वो यहाँ पर बैठा है। उन्होंने यहाँ पर पहनकर लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की थी और कमोवेश 2 साल तक बिप्लब देव जब यहाँ पर थे, उन्होंने इसी तरीके से स्थानीय लोगों से एक एक संवाद स्थापित किया था। लोगों से बातचीत गई कि वो ट्राइबल इलाके में वो गए और इसके अलावा जब भी कोई नेता आता दिल्ली से या फिर अलग अलग राज्यों से, उसका कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बिप्लब देव करते हैं और ये उन्हीं के बूथ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का नतीजा था जो त्रिपुरा में बीजेपी आज इस मुकाम पर पहुंची। और अब इसके जरिए यहाँ पर बीजेपी इससे और आगे जाना चाहेगी। जो त्रिपुरा में युवा वोटरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो अब इस सीएम के चेहरे से बीजेपी आने वाले दिन में न केवल त्रिपुरा बल्कि नॉर्थ ईस्ट में युवाओं से एक कनेक्ट स्टैब्लिश करने की बिल्कुल उम्मीदें बहुत ज्यादा है। आप नजर बनाए रखिए अमित, आपके पास आएंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।